Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the PhD degree applications that are currently open. University of Venice. This is one of the very good and very renowned university of the Italy. So before starting this, I just want to let you know the interface of this university because this university is considerably extending its teaching environment for the students. Like teaching experience में अगर आप देख लें तो इनके research environment, research quality, industry and international outlook में ये university जो है continuously growing stage पर है. और इसकी रैंकिंग अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंसेज में एंड फिजिकल साइंसेज में सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी आइडियल यूनिवर्सिटी not because of its teaching environment but also it lies in the European citizen like European continent, so that is why you should apply for this university, and PhD applications are currently open and that are also going to end very soon. So I will start that how you can apply for these PhD degrees. If you when you come to this page, you will get that there are the call for the application. You will आपने कॉल फॉर द एप्लीकेशन जो है इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है. बट इफ़ स्टिल यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी दैट यू कैन थिंक कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, देन यू विल गो टू द फैक्ट्स. बट if still it कैन नॉट बी रिजॉल्व, you are not satisfied, then you can directly email them and they are going to reply you within 1 to 2 business days. Okay, coming to down to this, you can see that there are multiple subjects that they are offering PhD in this, like computer sciences, engineering, physics, management, economics, Asian and African studies. So you see that there are not so much, but there are very much like subjects they are offering right now. ओके, व्हाट द PhD डिग्रीज इट इज़ द 3 years मिनिमम यहाँ इसका ड्यूरेशन होने वाला है. एडमिशन रिक्वायरमेंट जो होती हैं दैट आर सिमिलरली लाइक यू हैव द मास्टर्स डिग्री टू अप्लाई फॉर द PhD डिग्रीज. ऑल्सो यू शुड बी हैव द इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेशन. तो मैंने जो है वो इस लिंक पे क्लिक किया था, कॉल फॉर द एप्लीकेशन. सो विल गो टू दिस लिंक and you see that there are these are the deadlines and you have to follow it before it's too late. Coming to this, the position and the scholarships, and then what are the research proposal and what is the selection criteria, so we'll check it out. And these are the requirements. If as you are going to apply for the PhDs, you must have the master's degree, ठीक है. और उसके अलावा आपका इंग्लिश होना चाहिए B2 लेवल, बट इफ स्टिल यू हैव द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल हेयर. Okay, and candidates who have not yet obtained their degree, they have also like वो कहते हैं कि आपके पास provisional certification होना चाहिए आपके like hope certifications that should illustrate that you will achieve some sort of rank like 3.5, 3.6 or 3.4 or 3.1 till the end of your studies. तो होप सर्टिफिकेशन लेके यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी. और यूनिवर्सिटी डिग्री obtain अब्रॉड जिन्होंने की हुई है तो उनके लिए कुछ इस तरह की लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका अगर अपने कंट्री से बाहर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, देन यू विल चेक इट आउट दैट के एकेडमिक कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन बाय द सीमिया. अच्छा, ये इनकी एक वेबसाइट है जिस पे आप डिप्लोम करके इसका नाम है, और इस पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है. विद इन द 60 days यू आर गोइंग टू गेट योर सीनियर सर्टिफिकेशन एंड यू हैव टू पे देयर फी, एंड आई थिंक इट्स अराउंड द 400 euros. तो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ दिस डिप्लोम वेबसाइट. तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने रजिस्ट्रेशन करनी है. आई मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, बट स्टिल यू कैन सी दैट दिस इज़ द वेबसाइट एंड यू कैन कम हेयर. और आपने अगर आप इसमें अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे अपनी ओवरव्यू देखते हुए आपने इस पर अप्लाई कर देना है. बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास आपका सीमिया या DOV लाजमी होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू. ओके, हाउ यू कैन अप्लाई, तो ये भी इन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बट देर इज़ अ फ़ी ऑल्सो एंड दैट इज़ 15 euros एंड दैट इज़ नॉन रिफंडेबल. ठीक है. और दूसरा जो है हम आ जाएंगे स्कॉलरशिप्स के ऊपर कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स दैट दे आर ऑफरिंग राइट नाउ. सो यू कैन सी दैट ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव सीन अर्लियर, उनमें ये तमाम सब्जेक्ट्स थे. तो मैं अपना कंप्यूटर साइंस का अगर देखती हूँ तो 5 scholarships they are going to offer: the cyber security, learning on the graph representation and the generative models, and the compressed and texts for the regular languages with applications of the computational pan genomics. तो इन्होंने बता दिया है कि कुछ हमारे पास 5 स्कॉलरशिप्स हैं, बट वन इज़ टाइड फॉर दिस. एक जो है वो हमने ऐसे कैंडिडेट को लाजमी देनी है जिसका रिसर्च टॉपिक ये होगा.
सो इफ़ यू हैव द रेलेवेंट टॉपिक एंड इफ़ यू हैव, अपने सब्जेक्ट में जाएँ और उसका देखें कि वहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप्स हैं और उनका किस तरह से वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं, एंड इफ़ दैट इज़ रेलेवेंट टू योर रिसर्च प्रोग्राम और रिसर्च क्राइटेरिया, तो आप इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत रिसर्च करें और इस स्कॉलरशिप को अचीव करने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी लाइक बहुत से पर्क्स होते हैं आपको यहाँ इसमें मिल जाएंगे, लाइक अकोमोडेशन आपकी, उसके अलावा भी आपको स्टाइपेंड वगैरह. सो दिस इज़ द ओवरव्यू एंड दिस इज़ द रिसर्च. दे आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च प्रपोजल कि किस तरह का होना चाहिए. PhD ऑफिस हैज़ नो लॉन्गर देन इंडिकेशंस. तो इन्होंने बताया है कि आपका जो है रिसर्च पब्लिकेशंस किस तरह की आप चाहिए हों. हमें किस तरह का, मतलब एक क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया. द प्रपोजल शुड बी स्ट्रक्चर्ड एज फॉलोज. प्रोजेक्ट टाइटल जो है एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेंट होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. सो आई वुड हाईलाइट हियर दैट द एब्स्ट्रैक्ट, इनके पास इतना टाइम नहीं होता दैट दे आर गोइंग टू रीड योर एंटायर रिसर्च प्रपोजल. दे आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज योर एफर्ट्स इन योर रिसर्च प्रपोजल. सो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड आउटलुक आपका होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का, दैट शुड लाइक उनको इम्प्रेस करे. बट स्टिल द एब्स्ट्रैक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ द क्रक्स ऑफ योर द रिसर्च प्रपोजल. तो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली लिखना है. ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट टाइटल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है. मैक्स जो हैं वो 1000 करेक्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेसेस, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरेंसेस होने चाहिए. कितने रेफरेंसेस होने चाहिए विद स्पेसेस, एंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. तो मैंने तो जस्ट कंप्यूटर साइंस का देखा है, तो यू विल चेक इट आउट कि आपके जो भी आपका प्रपोजल है उसके बारे में इनकी रिक्वायरमेंट PhD को लेके क्या है. Okay, one more thing, that most of the students don't have the publication and they are worried that we'll get the admission or not. So they must like उनको अपना लक जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. बट स्टिल पब्लिकेशंस जो होती हैं वो आपको एज ज़रूर देती हैं. ठीक है, लेकिन इन केस यू हैव ऑप्टेड द कोर्स वर्क, तो फिर भी आपने घबराना नहीं है. यू हैव टू अप्लाई हेयर ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA ऑन योर लाइक आपकी अगर किसी भी फील्ड में कुछ थीसिस वगैरह हैं, कुछ भी है, दैट इज़ गोइंग टू कवर इट. ठीक है, सो दीज आर द आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिसर्च प्रपोजल. उसके बाद हमारे पास रह जाता है इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कहाँ गया, तो वो वही सेम होता है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपका जो है वो इंटरव्यू लेना है और उसकी डेट्स जो हैं वो भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं. ठीक है, कहाँ गया है वो. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट इट मोर, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देख ली हैं. तो अब हमने इसका अप्लाई का प्रोसेस जो है वो चेक करने के, इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है. ये इनकी स्कॉलरशिप्स की बातें हो गई हैं और यहाँ पे इनका अप्लाई का प्रोसेस है. कॉल फॉर द एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पे आके इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है, और ट्यूटोरियल भी है फॉर कम्बिनेशन PhD एप्लीकेशन. यहाँ पे इन्होंने एक कंप्लीट प्रोसेस आपको दिया हुआ है कि आपने हमारी जो 15 यूरोज़ की फ़ीस है वो जमा किस तरह करवानी है. तो ये यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने 16 पेजेस का PDF यहाँ पे इन्होंने अटैच किया हुआ है. एंड यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी डिटेल फ्रॉम हियर. किस तरह आपने प्रोसीड करना है, किस तरह आपने फिल आउट करना है. दे आर गोइंग टू लाइक सपोर्ट यू इन एट एवरी स्टेप. ठीक है, you will check जब आपका फीस का प्रोसेस आएगा. इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी देन यू कैन डाउनलोड दिस और यू कैन ओपन दिस PDF एंड टेक हेल्प फ्रॉम दिस. ओके, कमिंग टू दिस, इनकी कॉल फॉर द एप्लीकेशंस जो है ये 39 पेजेस का इनका है. 7 मई जो है वो इनकी डेडलाइन है. एंड देन दिस कॉल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेबसाइट, ये एक कंप्रीहेंसिव इन्होंने एक ईच एंड एवरीथिंग जो है कॉल फॉर द एप्लीकेशन एडमिशन क्राइटेरिया बताया हुआ है कि हमने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है. उसके बाद जो है रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बात की हुई है. आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई किस तरह करना है, वो सारा प्रोसेस जो है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है. एकेडमिक ईयर किस तरह होना चाहिए आपका. ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में वही बात आ जाती है, मास्टर्स होना चाहिए आपका. उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो हैं फॉर ईच PhD प्रोग्राम जो है वो एनेक्जर ए पे है इनकी. ठीक है, तो एनेक्जर ए आपको नीचे मिल जाएगा. इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगेन आ गया है. ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स जो हैं विद इन द डेडलाइन, जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मास्टर्स, तो वो 15 नवंबर से पहले जो है वो इसको अपनी डिग्री ऑब्टेन कर लेंगे. ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैज़ ऑलरेडी इनरोल्ड इन द PhD प्रोग्राम्स एट दिस यूनिवर्सिटी. तो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में ये वही बात है कि सीमिया जो है वो आपका होना चाहिए और उसको आपने किस तरह लेना है. अदरवाइज़ आपका स्टेटमेंट ऑफ द वेरिफिकेशन भी सीमिया के अंडर ही आ जाती है. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि तो रिसर्च प्रपोजल की बात हो गई है. CV जो है वो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी. यू मस्ट हैव द यूरोपा CV
and then certificate listing exams and grade for your master's degree. ठीक है. A maximum of the 2 reference letters from the professors, researchers or the expert in the field are optional qualifications for the PhD programs. They must be submitted according to this, and qualification must be uploaded through the online application only as described on the article number 6 इनका है. एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑन दिस वेबसाइट पे आके आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खोल लेना है. टू पार्टिसिपेट द सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फ़ी की बात आ गई. अ सिलेक्शन कॉल जो है यू वांट टू अप्लाई, you will be required to make a payment. Okay, the procedure involves 2 stages, both mandatory हैं. You must fill out and save online application through the link provided. उसके बाद registration का process बताया हुआ है. qualification and publication described वो आपके पास होनी चाहिए. रेफरेंस लेटर्स के बारे में तो बार बार इन्होंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ है विद इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है. और कैंडिडेट्स अगर डिसेबिलिटीज़ के हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उनको किस तरह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं. ओके, नीचे जो है ये एडमिशन पैनल जो है वो द एडमिशन पैनल जो है कंपोज ऑफ द 3 होंगे मेंबर्स होंगे विद अ मैक्सिमम ऑफ द 9 मेंबर्स होंगे. सो यू विल रीड इट थ्रू थॉरोली. ठीक है. इसको अच्छे से रीड कर लिया जाएगा और कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग दिस. फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो है उसके लिए आपको किस तरह कांटेक्ट करेंगे, वैसे तो थ्रू ईमेल ही करेंगे बट स्टिल व्हाट is the way the eligible candidates will be admitted to each PhD program according to the shortlisting ranking until the all available positions are filled. ठीक है. एंड द PhD स्कॉलरशिप्स की फिर बात ये कर रहे हैं कि कितनी आपको स्कॉलरशिप पर ईयर मिलने वाली है. ठीक है. रिन्यूएबल होगी एनुअली, एंटायरली प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑन द कॉल दैट होल्डर कंप्लीट एंड एग्रीड द एक्टिविटीज़. मतलब आपका जो है हर साल के बाद जो एवेल्यूएशन होगी ना, उस एवेल्यूएशन के बाद डिसाइड किया जाएगा नेक्स्ट आपकी स्कॉलरशिप के बारे में. नीचे जो है इन्होंने सब्जेक्ट्स के वाइज डिटेल भी दी हुई है कि आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल किस तरह से पता कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के बारे में इनकी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स दे आर पुट इन दिस PDF फॉर्म. तो मैं जस्ट जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर जा रही हूँ. तो मैं यहाँ से PhD इकोनॉमिक्स खोल लेती हूँ. तो ये एंटायरली टॉट इन इंग्लिश है, 4 ईयर प्रोग्राम है और रिसर्च टॉपिक्स जो हैं ये तमाम रिसर्च टॉपिक्स इनको रिक्वायर्ड हैं. सो यू विल सी कि अगर किसी के इस तरह के रिसर्च टॉपिक्स हैं देन दे आर वेलकम टू अप्लाई हेयर. एडमिशन की रिक्वायरमेंट भी अगेन इन्होंने बता दी है. प्लेसेस अवेलेबल फॉर द स्कॉलरशिप्स वन अगेन ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास 4 जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं और हमने किन किन को किस तरह इसको डिवाइड करना है. टोटल 6 नंबर ऑफ द टोटल 6 हो जाएंगी. ठीक है. एडमिशन प्रोसेस अगेन यू विल गो टू दिस वेबसाइट. और दूसरा इन्होंने क्या किया है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरव्यूइंग रिमोटली. आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा बिकॉज दिस इज़ द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम. कैंडिडेट मस्ट हैव द इंग्लिश प्रोफिशेंसी एंड क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अप टू 2 रेफरेंस लेटर, एकेडमिक पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग बुक चैप्टर्स एंड वर्किंग पेपर्स, मोटिवेशन लेटर हो जाएगा एक्सप्लेनिंग द रीजंस ऑफ परस्यूइंग PhD in economics, why you want to do PhD in economics at this university. Okay, this is a very important question that they are very intended to like उसको देखना चाहते हैं कि कौन सी रीजंस हैं आप और आप इनको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में. अदर सर्टिफिकेशंस डीम्ड यूजफुल इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें आपका GRE, GMAT, TOEFL वगैरह होता है. अगर आपके पास ये है देन यू आर गोइंग टू गेट द एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है. GRE टेस्ट भी वो रिसीव करते हैं. सो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया अगेन आ गया है. मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई जो है वो 60 आउट ऑफ 100 है. ठीक है. 100 में से अगर आपके 60 आ जाते हैं इस तमाम प्रोसेस पे देन यू आर गोइंग टू गेट क्वालिफाई. इंटरव्यू कंटेंट जो है अगेन ने बता दिया रिसर्च प्रपोजल की बेसिस पे होगा. हम जब आपसे इंटरव्यू पूछेंगे तो आपसे आपके रिसर्च टॉपिक्स के बारे में ही ज़्यादातर बात करने वाले हैं. ओके, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं PhD इन फिलोसफी एंड एजुकेशनल साइंसेस. तो अब इसका जो है अप्लाई का प्रोसेस देख लेते हैं. तो अप्लाई के प्रोसेस के लिए अगेन इसी लिंक पे क्लिक करते हैं. आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह से इसका तमाम प्रोसेस जो है वो करना है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. जस्ट अ मिनट. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस था ये. I am going to open the apply link. Okay,
हमने जहाँ से कॉल इसकी रिसीव की है, कॉल ऑफ द एप्लीकेशन, इसी पेज पे जब हम डाउन आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस पेज पे आ जाएंगे। और इस पेज पे आने के बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फॉलो द प्रोसेस, देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देनी है। यू कैन सी देयर आर मोर देन 5 पेजेस। तो ये आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो पूछते जाएंगे, बट आई कैन नॉट मेक इट लाइक फॉरवर्ड नहीं कर सकती बिकॉज आई हैवंट फिल्ड द फॉर्म येट। तो आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है और उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देना। आपको आपकी ईमेल पे लिंक आएगा, उस लिंक को ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी इस फॉर्म को फिल करने के बाद। और उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट जो है रेलेवेंट सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए तमाम फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, सो वीडियो इज़ ऑलरेडी टेकिंग वेरी लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट राइट हियर। सो इफ़ यू नी वांट कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब करूँ, so you can also comment me in the description below. Otherwise you can also text me on the WhatsApp that is also given on the description below. Thank you so much for watching. Take care and Allah Hafiz.